أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو داعی دین بنائے۔ داعی دین کا مطلب ہے آپ جو سنیں اسے آگے تک پہنچائیں، چاہے لکھ کے، چاہے بول کے، چاہے جیسے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ مسلمانوں سے مومنوں کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ایک درجہ بلند کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ قیامت کے روز ہر انسان کے گلے میں اس کا ریکارڈ، یعنی اس کے اعمال کا کتاب نامہ جو ہے لٹکا دیا جائے گا گلے میں، اور پھر انسان کو خود اپنا اعمال نامہ پڑھنے کو دیا جائے گا، جس میں اس کا ہر اچھا برا عمل ہوگا۔ ہر نیکی اور برائی کا بدلہ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وہ بھی پھر گناہوں کا، اور گمراہ کرنے والوں کو زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کر لیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، کس کو؟ اس مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ خوشحال لوگ۔ اس میں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ پھر ثابت ہو جاتی ہے اس بستی میں بات، یعنی کہ عذاب کا آنا ٹھہر جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، تدمیرا مکمل طور پر تباہ کرنا جسے کہتے ہیں، وہ تباہ کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، انسانوں پر شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن جب انسان کی گستاخیاں، نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوٹی موٹی باتوں سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ جب بات حد سے بڑھ جائے تو عذاب تک جا پہنچتی ہے۔ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ مترفیہا کا لفظ طرف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں نعمتوں میں ڈوبا ہوا۔ کون؟ وہ جو خوشحال طبقہ ہے نا، اب اس کی بات ہو رہی ہے، نعمتوں میں ڈوبا ہوا، آسائشوں والا۔ اس سے مراد وہ لوگ جو دولت، طاقت اور دنیاوی آرام کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہی طبقہ معاشرے کو بگاڑنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دوپٹہ یا چادر ہمارے لباس کا حصہ تھے، ہمارے پردے کے رکھوالے تھے۔ پہلے چادریں گئیں، پھر دوپٹے غائب ہوئے۔ یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ امیر کبیر گھرانوں سے آیا نا۔ اسے فالو کس نے کیا؟ ایک عام معاشرے کی عورتوں نے، جس میں ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں۔ وجہ کون بنا؟ ماڈلز نا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ امیر لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ خاص حکم براہ راست ان کو تو نہیں دیا جاتا نا، یعنی پہلے ہی وہ قدم جو تکبر اور بے حیائی کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک قدم اور ان کا بڑھ جاتا ہے، تو وہ کھلے عام گناہ، ظلم، بے حیائی، ناانصافی اور سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اکثر معاشرے کی قیادت آپ دیکھیں انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، اور کمزور لوگ بھی ان گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کی تباہی۔ تو پھر کون سا وقت آتا ہے؟ پھر وقت آتا ہے عذاب کا آنا ٹھہر جاتا ہے، اٹل ہو جاتا ہے، اور پھر تباہی یا تو جنگوں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی معاشی بحران کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اندرونی انتشار کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی قدرتی آفات کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو لینا تو جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہ ان سب باتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من القرون امتیں، من بعد نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ اور کافی ہے آپ کا رب،
बिज़ुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों की, खबीरन बसीरा, खूब रखने वाला है खबर और खूब देखने वाला है। पिछली आयत में हमने पढ़ा है ना कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब देना या हिलाक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो उस कौम के खुशहाल लोग जो पहले ही गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, उनके ज़रिए आम और कमज़ोर लोगों को भी गुमराह कर दिया जाता है, और इस तरह पूरी कौम गुमराही की वजह से अजाब की मुस्तहक़ी बनती है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्लों या कौमों में से कितनी उम्मतों को हिलाक कर दिया गया। देखिए, हम सोचते होंगे कि कुरान में बार-बार पिछली कौमों और उन पर अजाब का हवाला क्यों दिया जाता है? सोचते होंगे ना ये बात आप। ये इसलिए होता है कि इंसान ये समझे कि अल्लाह का कानून हमेशा एक जैसा रहा है, पुरानी कौमों के लिए भी, नई कौमों के लिए भी, जो हाल जो जहाँ से अब लोग गुजर रहे हैं, सबके लिए एक जैसा है। देखिए, जो कौमें जुल्म सितम, सरकशी, तकब्बुर और रसूलों की नाफरमानी में हद से बढ़ गईं, आखिरकार क्या हुआ? वो तबाह कर दी गईं। हज़रत नूह के बाद का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया गया कि हज़रत नूह की कौम पर आने वाला अजाब तारीख का सबसे बड़ा अजाब था। आप जानते हैं ना, इनके बाद भी आद, समूद, कौम लूत, फिरौन और दूसरी बहुत सी कौमें आईं, और उनके हाल भी आप जानते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें निशाने इबरत बना दिया गया, और जब जिक्र आता है कितनी ही कौमों को हिला कर दिया गया, कितनी बड़ी हकीकत ज़ाहिर होती है इस जुमले से कि इनके पास ताकत भी थी, मजबूत मुआशी हालात भी थे, यानी कि खुशहाल कौमें थीं, फौजें भी थीं, इल्म और फन भी था, लेकिन जब वो अखलाकी तौर पर गिर गईं तो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुईं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब बंदों के गुनाहों से खूब बाखबर है। यहाँ देखें, अल्लाह की दो सिफात बयान हुई हैं, खबीरन, जानने वाला, यानी अल्लाह ताला दिल के इरादे, छुपी बातें, हमारे खुफिया मंसूबे, साजिशें, सब कुछ जानने वाला है, और बसीरन, देखने वाला, और इंसान के हर अमल को देखने वाला है। इंसान ये ना समझे कि उसके गुनाह पोशीदा रह जाएंगे, दुनिया में धोखा हो सकता है, अदालत गलत फैसला कर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ कुछ भी ओझल नहीं। देखिए, गुनाह सिर्फ फर्द को नहीं, कौमों को भी तबाह करते हैं। अखलाकी ज़वाल आखिरकार कौम की तबाही बन जाता है। बेशक अल्लाह की पकड़ देर से आ सकती है, मगर अंधी नहीं होती। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 पढ़ते हैं, मन काना युरीदुल आजिलाता, जो जो हो चाहता जल्दी वाली दुनिया, इंसान की बात हो रही है, जो चाहता हो जल्दी वाली दुनिया, अजलना लहू फीहा, तो हम जल्दी दे देते हैं उसको इस दुनिया में, मा नशाउ, जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु, जिसके लिए हम चाहते हैं, सुम्मा जालना, फिर हमने बना रखी है, लाहू जहन्नम, उसके लिए जहन्नम, गौर से सुनिएगा, यसलहा, वो दाखिल होगा उसमें, मज़मूमम मदखूरा, मुज़म्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, डर लगता है, यकीन जाने आयात पढ़ते हुए डर लगता है। इस आयत में अल्लाह ताला इंसानों की दो मुख्तलिफ ज़हनियतों के बारे में बता रहे हैं। एक हिस्सा अगली आयत में आएगा। इस आयत में अल्लाह ताला पहले एक इंसान के ज़हन की बात कर रहे हैं। अब इंसानों की पहली किस्म की बात करते हैं। देखें, हम इंसान समझते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया, इसकी आसाइशें, ऐशो इशरत, दौलत, ताकत और फौरी फ़ायदे हैं। इन बातों के सामने आखिरत, अल्लाह की रज़ा और दायमी कामयाबी की अहमियत सानवी बातें बन जाती हैं, यानी कि पहले हम दुनिया को मुकद्दम रखते हैं, आखिरत की सोचते भी नहीं हैं, जिन पर सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। यकीन जाने ऐसा ही है, आखिरत के बारे में हम सोचना ही छोड़ देते हैं। कुरान ने दुनिया को यहाँ अल आजिलाता कहा है, यानी जल्दी मिलने वाली चीज। हम सब जानते हैं और पूरे यकीन से जानते हैं कि दुनिया वक्ती और आर्जी है, इसकी लज्जतें चंद रोजा हैं, इसकी खुशियों की उम्र भी कम है, और इंसान खुद भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाला। अब इस आयत का ये मतलब भी नहीं कि इस दुनिया की हर नेमत बुरी है। नहीं, हर नेमत बुरी नहीं, नेमत तो बुरी होती नहीं ना। देखिए, असल बात नीयत और तरजीह की है। अल्लाह की नेमतों को कैसे बुरा कहा जा सकता है? हर चीज अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बनाई, लेकिन मसला ये है कि हम किसी भी चीज का इस्तेमाल किस जगह करते हैं, वो गलत है या ठीक है, फर्क सिर्फ यहाँ पड़ता है। फर्ज कर लें, फोन है आपके पास आपकी चॉइस है कि आप उसमें से क्या देखते हैं। कोई इस्लाम के बारे में देखता है, कोई कुरान के बारे में, कोई नमाज के बारे में, कोई इल्म के बारे में, या फिर कोई डांस, भंगड़े, मरासियात,
माँ बेटे की जुवतें, डांस। तो बात तो बेटा नीयत पर तय हुई ना। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसे दुनिया में जितना चाहते हैं दे देते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया चाहने वालों को सब कुछ मिल जाता है, बल्कि फरमाया जो हम चाहें, जिसके लिए चाहें। देखिए दुनिया की दौलत, शोहरत देखकर ये समझ लेना गलत है कि अल्लाह इस शख्स से बहुत खुश है। हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि इसके पास बहुत दौलत है, शोहरत है, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश है। ये दुनिया में कामयाब नज़र आते हैं, मगर आखिरत में इनके लिए तबाही होती है। अब यहाँ असल अंजाम की बात हो रही है, यानी वो जहन्नुम में दाखिल होगा और उसकी आग का मज़ा चखेगा। वो मलामत ज़दा और धुतकारा हुआ होगा, यानी ऐसा शख्स जिस पर हर तरफ से मलामत हो, बुरा भला कहा जाए, मतलब अपने अमाल पर शर्मिंदगी हो, दुनिया के धोखे में आने पर नदामत हो, मदहूरा यानी अल्लाह की रहमत से दूर, धुतकारा हुआ। दुनिया परस्ती का अंजाम सिर्फ जिस्मानी अजाब नहीं, बल्कि रूहानी जिल्लत भी है। इंसान आखिरत में वहां महसूस करेगा कि उसने हमेशा रहने वाली आखिरत को चंद दिन की दुनिया के बदले खो दिया। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया बुरी है, लेकिन दुनिया मकसद ना बन जाए, आखिरत फरामोश ना हो। अल्लाह ताला की रज़ा सबसे पहले होनी चाहिए, और अगर अल्लाह ताला की अताअत के साथ है तो वो सब की सब नेमत है। आपको समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।